Hey there, this is my 24th tutorial on preparation for GRE, and today we'll be starting with the word watch. Okay, so अब watch के end में क्या आता है? CH, और इसको हम extend करें तो छी छी. हम छी छी क्या कब बोलते हैं? जब obviously जब कुछ बुरा हुआ है तो as the picture suggests, little miss clumsy means something is done clumsily. clumsily का मतलब होता है बड़ी गंदे तरीके से काम करना. जैसे how is she carrying the dishes very clumsily. तो जैसे मैं किचन में काम करती हूँ तो सारे कहते हैं you have washed the job. So इसका निमोनिक क्या है? when you do something clumsily that people say chi chi, it means you botched the job. और या फिर इसका सेकेंड निमोनिक बॉच. बॉच किस टाइम करता है? बुचर से भी. और बुचर कैसे काम करता है? उसे तो कट 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 गंदे से बस काटना होता है. तो बॉच like a butcher. ओके, तो बॉच का मीनिंग क्या हुआ? बॉच means to do something badly or in a way that creates mess. Okay, our next word is bourgeois. Okay, this is pronounced as bourgeois and not bourgeois or bourgeois, whatever. G is not in the pronunciation, it's bourgeois. So bourgeois का मीनिंग क्या होता है जब एनिमोनिक करते हैं? अब bourgeois में क्या आ रहा है? bourgeois में आ रहा है बोर. BOUR स्पेलिंग पर हम इसे करेंगे बोर. और बोर हम किसे कहते हैं? मिडिल क्लास लोगों को. इट्स जस्ट एन निमोनिक. ओके, आई एम मिडिल क्लास टू. सो बोर्शोस. अब मिडिल क्लास लोग क्या होते हैं? जब देखो कोई ना कोई बोर काम करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग तो करेंगे नहीं. ठीक है, तो बोर्शोस क्या होता है? इसका निमोनिक क्या है? बोर मिडिल क्लास पीपल. तो एक्चुअली बोर्शोस मीन्स कि if you describe people, their way of life or attitude as bourgeois, you consider them typical conventional middle class people. तो अब जैसे किसी का भी एटीट्यूड है बड़ा बोर, जो मिडिल क्लास एटीट्यूड होगा उसे हम क्या कहेंगे? bourgeois. बोर मिडिल क्लास पीपल. तो bourgeois means if you describe someone as bourgeois, it means that their attitude or way of life is very typical, and since it's typical, hence bore. Since typical, it's bore. What am I writing? Okay, our next word is Bowdlerize. Bowdlerize. अब इसका mnemonic. Okay, I need to be really very careful while typing, because I have seen most of the people are really complaining about my typos, and please people turn a blind eye to it. I'm really bad at spellings, I totally agree, and most of the times it's just typos. I make mistakes while writing, so please turn a blind eye to it. And anyway, I'm trying to improve. Bowdlerize. Okay, इसके लास्ट में क्या आता है? rise, which very much sounds similar to resize. तो अब हम resize करके क्या कर रहे हैं? अच्छा, मैं इसका वो भी बताऊंगी, root word. Maybe people have been asking for root words. I really don't know root words for most of the words, but anyway, I prefer the mnemonics and I will stick to that. But anyway, I'll let you know for this one. ओके, तो हम resize कर रहे हैं, और resize करेंगे तो अब ऑब्वियसली कि बड़ा तो हम करेंगे नहीं, हमें ज़्यादा काम करना तो पसंद नहीं होता, कम काम ही करते हैं.
तो रिसाइज करके हमने resize to make something small, to make something concise or small. तो bowdlerize का मतलब क्या होता है? Bowdlerize means to remove parts of a book or a play so as to shorten it. Means to remove parts of a book or maybe play. Here play means drama. Drama to shorten it. Okay, and इसका root word is Thomas Bowdler. And I heard something like that he resized the writings of Shakespeare. Bowdler resized, made them concise, writings of Shakespeare. Okay, our next word is braggart. अच्छा, अब ब्रैगर्ट में इसमें इमेज में क्या है? ये लड़की है हु सेज बेस्ट इन शो टू अनदर गर्ल. एंड लड़कियां तो वैसे भी लड़ती रहती है, मरती रहती हैं हर टाइम. तो अब जब कोई लड़की ऐसे बोल रही है बेस्ट इन शो, और वो भी किसी लड़की के सामने जो बेचारी कार्टून में भी इतनी सुंदर नहीं लग रही है, तो व्हाट दैट इज ब्रैगिंग. और ब्रैगिंग का हमने एक सिनोनिम लास्ट ट्यूटोरियल में किया था, विच वाज, ट्राई टू रिमेंबर इट वाज, चलो कमेंट बॉक्स में लिख देना जिसको याद है, अब मैं नहीं बताई. और ब्रैगर्ट का मीनिंग क्या होता है? ब्रैगर्ट का मीनिंग होता है टू बोस्ट इन एन ऑफेंसिव वे. ओके, और मतलब वही ना, ब्रैगर्ट कोई ब्रैग कर रहा है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और मैंने सेम यही सेंटेंस बोला था पिछले ट्यूटोरियल में भी, तो आप उसे याद करो और कमेंट बॉक्स में लिखो. ओके, ब्रैगर्ट मीन्स टू बोस्ट इन एन ऑफेंसिव वे. Our next word is brandish. अब इसका निमोनिक क्या है? इसमें क्या आता है? ब्रांड, और उसको हम कर देंगे ब्रांड राइम्स विद ब्रांडी. अब ब्रांडी अल्कोहलिक होती है आई गेस, हाँ कुछ तो मतलब उससे होता ही है नशा वशा, तो ब्रांडी पी के ब्रांडिश. अब जैसे इमेज में क्या है, एक वेपन है हाथ में, तो ब्रांडिश मीन्स टू hold or wave the weapon in an aggressive way. To hold or wave the weapon in an aggressive way. Okay. Our next word is brawn. अच्छा, ये अच्छा वर्ड लगता है मेरे को, ब्रॉन. अब इसका निमोनिक क्या है? इसका निमोनिक है बॉयज हैव, मेरा फेवरेट निमोनिक है ब्रॉन, बट नो ब्रेन्स. ये टू ऑल द बॉयज आउट देयर, आई हेट यू ऑल. नो, आई एम जस्ट किडिंग. ओके, सो बॉयज हैव ब्रॉन बट नो ब्रेन्स. तो ब्रॉन का निमोनिक का मीनिंग क्या होता है? फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टर्डीनेस. और ब्रॉन का एक और भी निमोनिक है, नंबर 2. Why am I not moving to the next line? Oh, bad. Okay, ब्रॉन. हाँ, इसका सेकेंड निमोनिक है प्रॉन खा के ब्रॉन. तो ब्रॉन मीन्स प्रॉन खा के ब्रॉन क्यों? क्योंकि नॉनवेज खाने से तन की शक्ति, मन की शक्ति. तो ब्रॉन मीन्स नो बॉर्नवीटा. एनीवे, ब्रॉन राइम्स विद बॉर्नवीटा एज वेल. ब्रॉन मीन्स फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टर्डीनेस. और यहाँ पे हमारे एक और निमोनिक का जन्म हुआ है, तन की शक्ति, मन की शक्ति,
इट्स जस्ट तन की शक्ति, नॉट मन की शक्ति, हाँ तन की शक्ति, ब्रॉन। और नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेजन। अच्छा, अब लड़के तो वैसे से सुन के बड़े खुश होंगे। तो ब्रेजन में क्या है, ब्रेजन में आता है ब्रा। और ये जो फर्स्ट वाली इमेज है उसमें मैंने पहली बात तो गर्दन हटा दी, क्योंकि आई डोंट वांट कल को आके मेरे को कोई बोले कि अच्छा तुमने मेरे को, अच्छा पहले मीनिंग बताती हूँ। ब्रा, अब जो लड़की की ब्रा दिखाए वो है ब्रेजन। तो ब्रेजन का मीनिंग क्या है, बेशरम। ब्रेजन मीन्स बेयर फेस्ड, नो शर्म और बेशरम। अच्छा, और मैंने ये शक्ल इसलिए हटा दी, मैं नहीं चाहती कल को आके मेरे को कोई बोल रहा है कि अच्छा तुमने मेरे को ब्रेजन कह दिया क्योंकि मैंने ब्रा पहनी हुई है, तो मैंने इसलिए गर्दन हटा दी है। और जैसे इसमें कह रही है माई बॉयफ्रेंड्स वाइफ हेट्स मी, तो शी इज़ ब्रेजन बिकॉज शी इज़ टॉकिंग दैट वे। तो ब्रेजन मीन्स बेशरम। और नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेवेडो। ब्रेवेडो, ब्रेवेडो, ओके। ब्रेवेडो का मीनिंग होता है, पहले निमोनिक करते हैं और इसका निमोनिक क्या है, चलो मीनिंग करते हैं, मेरे को इसका निमोनिक याद भी नहीं आ रहा। ब्रेवेडो मीन्स टू शो करेज। ब्रेवेडो इज अपीयरेंस ऑफ करेज। चलो हाँ, इसका निमोनिक था। ब्रेव लोग कैसे कहते हैं, ब्रेव पीपल हर बात में आंसर करेंगे आई विल डू। इसके लास्ट में क्या आता है, वैडो, विच राइम्स विद विल डू। तो ब्रेव लोगों को कोई डर नहीं लगेगा, उनको कुछ भी कह दो करने के लिए वो करके ही छोड़ेंगे। तो ब्रेवेडो मीन्स appearance of courage or confidence that someone shows in order to impress people. So bravado means appearance of courage that someone shows in order to impress people. I hope you guys can see what I have written in the slide, because the size is quite small as compared to other size in the slide. Okay, moving on to the next word, brevity. Brevity का mnemonic इसी पिक्चर, इसी जो इमेज है उसमें है। One says brevity is the soul of wit, or oops sorry, my bad. Oh, I'm just spoiling my video. No, sweetheart. I'm sorry, you guys. या तो ब्रेविटी का मीनिंग होता है, ब्रेविटी का मीनिंग इसी में है। वन से ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, और दूसरे ने कहा ब्रेविटी कोलन विथ सोल। तो उसने क्या किया, वर्ड्स को कम कर दिया। ब्रेविटी, उसने पूरा सेंटेंस बोला ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट और ब्रेविटी विथ सोल। तो ब्रेविटी का मीनिंग क्या होता है, ब्रेविटी इज क्वालिटी ऑफ सेइंग यूजिंग फ्यू वर्ड्स व्हेन स्पीकिंग और राइटिंग। तो ब्रेविटी इज क्वालिटी ऑफ यूजिंग फ्यू वर्ड्स वाइल स्पीकिंग और राइटिंग। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करती हूँ और थोड़ा। जैसे किसी कईयों को बोलते हैं ना, बड़े लेकॉनिक रिप्लाई हैं इसके। इसका सिनोनिम, काइंड ऑफ सिनोनिम, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स एग्जैक्टली द सिनोनिम ऑफ ब्रेविटी, बट काइंड ऑफ लेकॉनिक। लेकॉनिक किसे कहते हैं, लेकॉनिक बेसिकली कहते हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत कम बोलते हैं, पर बोलते हैं तो ऐसी बात बोलते हैं कि हाँ मज़ा ही आ जाता है, तो वो होते हैं लेकॉनिक रिप्लाई। लेकॉनिक इज समथिंग ब्यूटिफुल इन वेरी फ्यू वर्ड्स, एंड येस दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ब्रेविटी इज। तो लेकॉनिक समथिंग यूजफुल और ब्यूटिफुल, मतलब समथिंग मीनिंगफुल इन वेरी few words. So that's brevity or laconic. Our next word is bravura. Bravura.
अब ब्रेवियरा का निमोनिक क्या है, इसका ये इमेज में क्या है, पेंटर। तो पेंटर क्या होते हैं अब, आर्टिस्टिक। चलो इसका निमोनिक करते हैं। इसके एंड में क्या आता है, व्यूरा, विच साउंड्स वेरी मच लाइक वीर। और वीर किसे कहते हैं, समवन हु इज़ वेरी एंथुजियास्टिक और पैशनेट। वीर है, अब इसमें एंड में वीर आता है तो वो हुआ एंथुजियास्टिक और पैशनेट। बट एंथुजियास्टिक और पैशनेट अबाउट व्हाट, अबाउट व्हाट, essentially something artistic, essentially something artistic। तो ब्रेवियरा का मीनिंग क्या होता है, ब्रेवियरा means great skill and enthusiasm in doing something artistic। so ब्रेवियरा means great skill and enthusiasm in doing something artistic। okay, and our next word is brooch। अच्छा, ब्रोच का निमोनिक होता है, इनका निमोनिक है अप्रोच। ब्रोच किससे राइम करता है, अप्रोच से, अप्रोच टू टॉक। तो अब जैसे इमेज में इट्स टाइम टू हैव द टॉक, लेट्स टॉक अबाउट सेक्स। अब लेट्स टॉक अबाउट सेक्स क्यों, क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री वेयर एवरीवन वांट्स टू बिलीव दैट नो वन रियली हैज सेक्स व्हेन एवरीवन इज स्पीकिंग इनटू द क्लीवेजेस। सो अप्रोच टू टॉक। तो एनीवे वी आर डिग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक। ब्रोच मीन्स का निमोनिक है अप्रोच टू टॉक। एंड अप्रोच टू टॉक व्हाट, something that is difficult to talk about, difficult to talk about। so broach means to start to talk about something embarrassing or little or something that is difficult to talk about। Why are people shouting in my background? I don't know. Okay, with this, come to the end of our tutorial today. Don't forget to give the feedback. Any comments, likes, and subscriptions are most welcome. Stay tuned. Bye bye.